हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खेल के मैदान से क्या खबरें हैं, ये जानने के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद हैं साथी एंकर अनमोल हक। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लेकिन सबसे पहले आपको दुबई लिए चलते हैं, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। It is. We have the arsenal to combat that. If there are conditions which is helping the bowlers with the overhead conditions, the bowlers are there to exploit that. And the batters, if we bat in those overhead conditions, they exactly know what to do. Yeah, Rohit, Josh Butler said after that series that the big difference was, India's top batsmen getting hundreds. He was referring to your hundred. This during the course of conversation with Michael Atherton and Nasser Zain in Sky Sports. How much of this conversation goes on in your team? And they also said that there is a 2020 style of play reflected more in one-day cricket now. What is the question? No. The question is, were the top three or four batsmen getting hundreds for big totals? Yeah. Of course. I mean, that's the key to have success in this format. Your top 3, 4, 5 batsmen needs to get that big score for you to post a big score eventually. So I think our top 4 batters are quite experienced, and once they are set, once they are in, they like to get those big runs. So they do understand that, and everyone understands that, between your top 4, one has to get that big score. And in the World Cup, we've seen it as well. When we played that ODI World Cup, there were only few hundreds that we scored, but we went on to score quite a few times, 350 plus scores or 330 scores like that. So I think it's about all 7, 8 batters chipping in, whether you get big score or not, but all 7 or 8 batters needs to contribute. And whatever the responsibility, whatever the understanding that we have of them, it's all about, putting those contributions ahead. I've seen it in the recent past where even without scoring 100, the teams have managed to get par score or above par score in ODI format, because everybody wants to chip in and everybody has chipped in. That will be our focus. We will not be looking at the individual milestone and stuff like that. Whoever the 2 batters are in there, they have to do the job, and the guy goes in after that has a job to do as well. So if 7, 8 of us think like that, we will end up getting the score that we are looking for. So it's just about everyone contributing to the cause. Rohit, are you happy with the form of your deputy Shubman Gill, considering struggled a bit in Australia, and after that the way he's come back, with the good runs in the series against England? No. Look, Gill is a very, very classy player. There was never a doubt about his ability in this squad. The formats, I think we tend to mix formats, and I don't think that's the right way to judge any player. Certain players have their strength in certain formats, and if the one format doesn't go well, doesn't mean that the other format will be the same. And it's there for all of us to see what happened in Australia. Things have changed, suddenly in a different format. So with Gill, we know the numbers are crazy of Gill. If you look at it, he's been superb for us in the last 3-4 years that he has batted, and obviously there is a reason that he's been elevated to be the vice captain of the team as well. Hopefully, he has a great tournament, and it eventually will help us achieve that things that we are looking to achieve. Rohit, you will be playing all your games here in the Dubai. The surface here produces results that helpful for the chasers. Toss plays a vital factor actually. So in that context, what are the T21 World Cup, 21 IPL, even IL T20 recently, the chasing team was winning. So the luck plays a very big factor, and you will be playing all the games here. So that is what is your perspective on that? No, look, I never go with a set plan of
thinking about this in this venue. This has worked for certain teams, so we should try and do that. Whatever works for us, we will try and do that, whether it is batting second or batting first. I've still not seen the pitch. We need to still see the pitch and talk to the groundsmen about the conditions of the ground and stuff like that. Whatever the recent games have been played here were all T20 formats. So I don't know if it's the right thing to look at that and do our judgment. I think it's important that whatever we feel. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज 9वां एडिशन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया है। टोटल न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से 320 रन किए गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये इफ्तिताही मार्का है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया है। कराची में कीवीज से पहले खेलकर 5 विकेट पर 320 रन स्कोर किए। टॉम लीथन और ओपनर विल यंग की शानदार सेंचुरियां सामने आई हैं। लेथम ने नाकाबिले शिकस्त 118 और विल यंग ने 107 इनिंग्स खेली हैं। ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों पर जारहाना 61 रन भी बनाए हैं। कॉनवे और डैरल मिचेल 10-10 जबकि केन विलियमसन 1 रन बना सके हैं। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की है। न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया गया है। आज के पहले ही मैच में 2 सेंचुरीज हुई हैं और न्यूजीलैंड के 2 बैटर्स की जानिब से सेंचुरीज की गई है। विल यंग और टॉम लीथम की जानिब से सेंचुरियां की गई हैं। आपको बताते चलें कि ओपनर विल यंग और विकेट कीपर टॉम लीथम ने सैकड़े जड़ दिए हैं। लीथम ने 104 गेंदों पर 118 रन की जारहाना इनिंग्स खेली हैं जबकि विल यंग ने 113 गेंदों पर 107 रन भी बनाए। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामात किए गए हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इस मैच को देखने के लिए और इसके साथ साथ ARY लगूना DH गुजरांवाला में भी बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है शायकीन के लिए इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए। हमारे नुमाइंदा गुलाम फरीद हमें वहाँ से मजीद बताएंगे। बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी के सिलसिला में आज गुजरांवाला ARY लगूना DH गुजरांवाला में जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट मैच है वो दिखाया जा रहा है। गुजरांवाला के पहलवान खास तौर पर उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। उस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी जनरल मैनेजर हैं वहाब तारिक। आज मैच है, मैच की काम अपनी जगह, मैच अपनी जगह, तो बड़ी तादाद में शहरी भी बिजनेसमैन भी सब यहाँ मौजूद है, मैच एंजॉय कर रहे हैं। हमने आज विजिट किया है, इधर मैच भी देखा है ARY लगूना पे और हमें बहुत पसंद आई है जगह। यहाँ पे आके हमने क्रिकेट मैच भी देखा है तो यहाँ पे एंजॉय भी किया है, विजिट भी किया है। बिल्कुल जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद है, वो खुश है कि गुजरांवाला में जो है ARY लगूना बनने जा रहा है। जी दीगर खबरों के लिए रुख करेंगे स्टूडियो का जहाँ पर मौजूद हैं शाइस्ता यूसुफ। बहुत शुक्रिया अनमोल और बुलेटिन में मजीद खबरों को भी हिस्सा बनाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सनत, ज़राअत, IT के शोबे में तरक्की, रोजगार की फराहमी और बरामदात में इजाफा है। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात में बैनुल-अक़वामी मार्केट का मुकाबला कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल से खिताब। कहा खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तादात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मौशी इस्तेहकाम पूरी टीम की कोशिशों से मुमकिन हुआ। मजीद मेहनत से मईशत की पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की फराहमी, IT बरामदात, फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशां हैं। डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। फितना फसाद के हवाले से आपके जहन में पहला नाम किसका आता है? बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर किसने इजाद किया? जवाब सबको पता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। दूसरे सूबों के पास भी बात करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं चचा वजीर आजम पैसे देता है और भतीजी वजीर आला खर्च करती है। दफा मुल्क को बहरानों से किसने निकाला? तो एक ही जवाब है, आप दें या ना दें। नवाज शरीफ ने। कुछ तल्ख हकाइक भी हैं कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? पहली मर्तबा इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? कौन है जिसने पहली मर्तबा मस्जिद नबवी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली? मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया वो भी पता है आपको। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये अब अपने खात्मे की जानिब है। आज भी
मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं। बाकी सूबे क्योंकि उनके पास बात तो है नहीं करने के लिए, वो ये तो नहीं कह सकते पंजाब में काम नहीं हो रहा, तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और भतीजी है वो खर्च कर रही है। एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलतें हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के मातहत हैं। अगर मरकज ने सिंध के हुकूक पर डाका डाला तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। विफाक को ब्लैकमेल नहीं, जायज हुकूक हासिल करना चाहते हैं। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं होती, हमारी सिर्फ वो सड़कें खराब है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सूबाई हुकूमत की सड़कें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। तरक्की का पैमाना जो है सेहत की सहूलियात होती है। आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए सूबा सिंध में आते हैं। जहाँ पर भी वफाक की तरफ से सिंध के हुकूक पर जब कोई डाका डाला जाएगा या उसे रोका जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। हम कोई वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल भी नहीं कर रहे। हम चाहते हैं जो हमारे जायज हुकूक हैं उसको वफाकी हुकूमत पूरा करे। ऑपोजिशन जमातों का अलायंस बना रहे हैं। रमजान से पहले बहुत सी सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर इकट्ठी नजर आएंगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ कौमी होगा। एक मुत्तहिदा अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं और एक ग्रेटर नेशनल एजेंडा के ऊपर, जिसमें इमरान खान साहब के केस, हमारे कारकुनान के केस, हमारे रहनुमाओं के केस नहीं है। जमहूरियत कानून की बहाली, आज़ाद अदलिया, ये हमारे मुतालबात हैं। मुस्बत जवाब मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा रमज़ान से पहले बहुत सारी जमातें एक मौक़िफ़ पे इकट्ठी होती हुई नजर आएंगी। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के सदर की सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। नवाज शरीफ ने यह भी कहा, 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF और बैरूनी मदद की जरूरत ना होती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर का बरतानिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरते वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ की बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रेडिकन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर रोलैंड वॉकर और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन निकोलस पावल से मुलाकात होगी। बरतानवी होम सेक्रेटरी मिसेज यूटी कॉपर के साथ भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ बरतानवी फौज के नुमाया यूनिट्स का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें बरतानवी फौज की ऑपरेशनल हिकमत अमलियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग का दूसरा दौर। लंदन में होने वाली बातचीत में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस दौरान दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से सिक्योरिटी खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात का बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के तनाजुर में जायजा लिया गया। कानून की अमलदारी और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए तरीक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए दो तरफा शराकतदारी पर भी गौर हुआ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार थे। भाई था, आधी गार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको उतार के नीचे ले गए, गोलियां मारी। बलूचिस्तान के जिला बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारखान वकार खुर्शीद आलम का कहना है, वाकया गुज़िश्ता शब तहसील रखनी में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर बस को रोका और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर गोलियां मारी। मिलने पर जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद लोरा लई, कंगरी और करीबी इलाकों में मुसाफिर बसों और गाड़ियों को एहतियातन रोक दिया गया। बारखान में दहशतगर्दी के वाक़े में बच जाने वाले मुसाफिर जीशान का कहना
ہے. اس کے بھائی عدنان کو اس کے سامنے اتارا. سب کے شناختی کارڈ دیکھے. میرا شناختی کارڈ انگلش میں تھا. دہشت گرد جو تقریباً 10-12 آدمی سے کلیشنیں ان کے ہاتھ میں تھی. میرا انگلش میں شناختی کارڈ تھا. میرا جو بھائی تھا شناختی کارڈ اس کا دیکھا, اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے, اس کو اتار کے نیچے لے گئے, گولیاں ماری. خان میں قتل کیے گئے 2 مسافر فیصل آباد کے رہائشی تھے. رائے چک کا رہنے والا 20 سالہ سفیان کوئٹہ میں لوہا فیکٹری میں کام کرتا تھا. پیپلز کالونی کا رہائشی 60 سالہ شوکت علی رشتہ دار کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو سخت جواب دینے کا عزم دہرایا ہے. کراچی بندرگاہ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا اسکینڈل کا انکشاف. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 40 ارب کی زمین 5 ارب میں دے دی گئی. یہ ساری اراضی ہم SIFC کو دیں گے. آئندہ سب زمینیں ڈالرز میں بیچی جائیں گی. 8 سے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دیا, وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ میں, ادھار میں. 3-4 سال اور 10 سال سے کہانی چل رہی. ساری لینڈ کلین ہے, اس کی بائفرکیشن قیمت ایک ہمیں لسٹ دیں گے. جس پہ کیسز ہیں وہ کیسز ہم ختم کروائیں گے, وہ ایک لسٹ بنے گی. ایک جس پہ قبضہ ہے وہ قبضہ خالی ہوگا, اور پھر یہ سارا لینڈ بینک ہم پورا کر SIFC کو دے دیں گے. 6000 گز کی لینڈ ہے جو PNSC کی بلڈنگ کے برابر میں ہے کراچی میں. ایک آئیڈیل پراپرٹی ہے 7 اسٹار ہوٹل کے لیے. میں نے یہ پرپوز کیا اس کو بھی فریز کریں, SIFC کو دے دیں. وہ بھی بلینز کا پروجیکٹ. جب ڈاکیومنٹ ٹیلی ہوں گے تو میں پھر ڈاکیومنٹ سامنے رکھوں گا. میری انفارمیشن انکریکٹ نہیں ہوتی. ہم نے ڈائریکٹو دیا ہے, سجیشن نہیں دیا. ساری لینڈ ٹرانزیکشن فروزن. آج کے بعد کوئی بھی لینڈ ٹرانزیکشن اگر ہوگی انٹرنیشنلی ہوگی, ڈالرز میں ہوگی. یہ وزارت جو ہے آپ کا پورا لون پے آف کر سکتی ہے پاکستان کا. اس پہ اتنا دم خم ہے. چنیوٹ میں 20 فروری سے شروع ہونے والا جشن بہارہ میلہ عوام کے لیے تفریح اور ثقافت کا حسین امتزاج پیش کرے گا. مزید بتا رہے ہیں امیر عمر چمن اپنی اس رپورٹ میں. ضلعی حکومت کی طرف سے جشن چنیوٹ کے نام سے 20 فروری سے شروع ہونے والا میلہ عوام کے لیے تفریح اور ثقافت کا حسین امتزاج پیش کرے گا. میں تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی جاؤں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, انجوائے کروں گا. چنیوٹ میں ہونے والی کھیلوں میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے. وہاں پہ طرح طرح کے سٹالز لگائے جائیں گے, جولری بھی ہوگی, اور ہم لڑکیوں کو تو پہلے بھی کریز ہوتا ہے جولری وغیرہ دیکھنے کا. اپنی کزنس کے ساتھ ضرور جانا چاہوں گی کیونکہ کزنس کے ساتھ انجوائمنٹ کا بھی مزہ آتا ہے, اور وہاں پہ ہم خریداری بھی کریں گے. ڈفرینٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, مشاعرہ ہو رہا ہے, مینا بازار لگ رہے ہیں, تو ہر طبقہ فکر, نوجوان کیا, بچے کیا, بوڑھے کیا, عورتوں کے لیے ایونٹ رکھے گئے ہیں. جشن چنیوٹ نہ صرف عوام کے لیے تفریح کا باعث بنے گا بلکہ اس سے چنیوٹ کی ثقافتی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا جائے گا. امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی پہلی وکٹ 8 رنز پر گر گئی ہے. 321 رنز کا ہدف دیا ہے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے. سعود شکیل 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی پہلی وکٹ 8 رنز پر گر گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.